नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, in Chinese ni hao, in Japanese konnichiwa, and bonsoir in French. Pradeep ji. Abaria ko jabo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. So Pradeep ji, the big news today, the BLA, the Baloch Liberation Army, has hijacked a train which was going from Quetta to Peshawar, and they have got about 100 Pakistani soldiers hostage. That's of course number one. Number two, they let the women and children go, and they let all civilian Balochis also go. That's what they did. But the surprising part for me was, अगर आप ट्विटर पे देखें, मतलब नाउ एक्स, लोग इस बात से हैरान हैं कि पाकिस्तान में ट्रेन भी चलती है, ट्रेन भी चल रही है, रेलवे है पाकिस्तान में. Yes, yes, yes. Very, very strange. So, of course, I believe Pakistani drones, those Turkish-made drones and those helicopters, they are bombarding the entire area. The BLA, of course, has said that they're going to start killing all the hostages if these guys don't stop. I hope everything is resolved. 40% of Pakistan is Balochistan. Now, even if they bombard, how much are they going to bombard? You're finished. And the main thing is all the infrastructure that is going through Balochistan. I think the CPEC also is going through that. Yes. The Chinese-Pakistan Economic Corridor. That's right. So, the defunct Chinese-Pakistan Economic Corridor. That's right. So it's going to be a tough time for them to contain. One is they have to have a political process, and then if it doesn't work, total all-out war. But then. अरे सर, सबसे बड़ी बात है जहाँ तक बलोचियों का सवाल है, you know my father comes from that area. Yes, yes, yes. My whole family comes from that area. They come from Quetta. अब वो बोलान पास के पास वो ट्रेन उन्होंने रोक ली है. जो बलोच वहां के रहने वाले जो हैं, उनका जिस प्रकार शोषण हुआ है, it is the worst kind of genocide that has taken place, which the world does not talk about. बिल्कुल. मुझे अभी तक याद है, नरेंद्र मोदी जी ने 2015, I remember 2015 के अपने लाल किले के एड्रेस से उन्होंने ये कहा था कि मेरी बलोच बहनें जो हैं, आप फिक्र ना करें, हम लोग आपके साथ हैं. आप, you don't worry, we are with you. That's what Mr. Modi has said. I think Mr. Modi has kept his word. And continuously, right from the time of Musharraf के ज़माने से अब देखोगे, no sir, there have been continuous onslaught, and it was more in the time of Musharraf because he promised something. Sir, from the time of Zulfikar Ali Bhutto. I know, but बहुत सारे ऐसे थे, the Bukti and all were killed when Musharraf was there, in spite of given assurances that plane भी भेजा था उनको escort करने के लिए to Pindi, and it never happened. Never happened. He was murdered. He was killed. He was murdered. Musharraf boasted that क्या इनको हम स्वागत करें, we needed to kill them. I mean, he was very, very upfront. सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, ये शायद लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं एक बार फिर दोहराता हूं इस बात को, जरा ध्यान से सुनिए. 1971 की इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में जहां पर बांग्लादेश बनाया गया, 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड टू द इंडियन आर्मी. हमारे पास 90,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे. इंदिरा जी ने नेगोशिएशन में, शिमला में जो नेगोशिएशंस हुई आनंदेल एयरपोर्ट पे, हेलीपैड पे, आनंदेल हेलीपैड पे जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा जी के बीच में, वहां पर इंदिरा जी ने सारे 90,000 सारे के सारे वो पाकिस्तानी फौजी जिन्होंने बांग्लादेश में बंगालियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया, सामूहिक हत्याकांड किए और ना जाने क्या क्या यातनाएं दी बांग्लादेश के नागरिकों को, उन सब को वापस लौटा दिया. प्रदीप जी, the then Prime Minister Mr. Zulfikar Ali Bhutto used these same POWs to do exactly what they were used to in Balochistan. They did in Balochistan what they were used to doing in Bangladesh. ये काम इन्होंने वहां पर किया. टैंक्स भेजे गए, फौज भेजी गई, कितने लाख बलोचियों के साथ क्या हुआ आज तक उसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है. फ्रॉम 1972 to 74 there was one massacre after the other. All thanks to us. और इसके लिए क्रेडिट हमको जाता है
कि हम लोगों ने सारे POW छोड़ दिए. And there was nothing that you could do about the POWs because it became an expensive affair maintaining them. Yes. कब तक आप रखेंगे POWs को और कब तक That's खाना right. रोज खिलाते रहेंगे 3 बार That too. It was like Prime Minister जब जी 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना 90,000 prisoners को रोज खाना And 3 that बार too, maintenance. constant checks by the Red Cross. Yes. Whether Geneva Convention Yes. is being adhered to or not, and so on and so forth. Then it will become a problem. Actually, but- इनको maintain करना ही problem था. But we इतना should, अच्छा rightfully speaking, have negotiated for Pakistan occupied Kashmir. We should have said that ये वापस दीजिए, हम आपके 90,000 वापस भेजते हैं, or something like that. But anyway, it didn't happen, and that is possibly because both the Soviet Union and the Americans put pressure on Mrs. Gandhi and said कि भाई इनको जाने दीजिए. That's what happened. In any event, let's come back to Maharashtra. let's talk about what's been happening here. We have very important guests indeed. Sameer Bagre Saab of the BJP, Sanjay Dwivedi ji of the UBT Sena. Sanjay Dwivedi ji, namaskar. जय श्री राम जय श्री राम Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. हर हर महादेव। समीर बागरे जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब होली तो परसों है, लेकिन उसके पहले ही आपको होली की बहुत शुभकामनाएं। संजय द्विवेदी जी, आपको भी होली की बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी सर, आपको भी। थैंक यू। समीर बागरे साहब, अगर महाराष्ट्र के बजट के बारे में बात करें, अजीत दादा पवार साहब की स्टेटमेंट आई है कि ये मेरा सबसे अच्छा बजट है आज तक का, ऐसा उन्होंने कहा है। आपके मुताबिक इस बजट में क्या उपलब्धि है कि अजीत दादा पवार साहब ये कह रहे हैं कि बिकॉज ही इज बीन फाइनेंस मिनिस्टर सो मेनी टाइम्स, वो कहते हैं कि इससे अच्छा बजट मैंने पहले कभी प्रेजेंट नहीं किया। अब आप बताएं सर, समीर बागरे साहब फ्रॉम द बीजेपी, प्लीज। देखिए, अजीत दादा एक बहुत एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरा सबसे अच्छा बजट है, तो पूरे महाराष्ट्र की जनता और पूरे महाराष्ट्र की राजनीतिक जो प्रणाली है वो पूरी ध्यान से उनको सुनेगी। मैं इसके पीछे कुछ कारण देखता हूं कि जैसे एनडीए की सरकार है अपनी, नरेंद्र मोदी जी की, और यहाँ महायुति की सरकार है देवेंद्र जी के नेतृत्व में। इसका केंद्र बिंदु हमेशा से हमारा फार्मर रहा है। इसके साथ उद्योग और महिला, ये 3 जो घटक है, और गरीब कल्याण तो हमारा सबसे बड़ा नारा है। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि जब ये बजट पेश हुआ तब सब लोगों ने एक एक भ्रांति फैलाने की कोशिश की थी। They started to confuse people that because of the lot of populist schemes announced by the government, ये सब अभी बजट का ये नहीं होने वाला है, बराबर कुछ आने नहीं वाला। लेकिन टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन, ये जो बजट है ये फिस्कली प्रूडेंट बजट है। आप देखिए कि फिस्कल डेफिसिट जो 3% का फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के अंडर होता है, उसके अंडर है। फिर लोन टू जीडीपी का रेशो भी जो है वो 18.77 है, जो 25% का कैप होता है उसके नीचे है, और 20% के नीचे तो इंडिया में सिर्फ 2 राज्य है, गुजरात और महाराष्ट्र। अब देखिए ये बजट में क्या खासियत है। आप देखिए कि जैसे देवेंद्र जी गए थे दावोस में, उन्होंने 54 करार किए 16 लाख करोड़ के। अब ये 16 लाख करोड़ के जब करार किए तो उद्योगों के लिए जो व्यवस्था है, तो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 में लॉन्च होगी। तो इसमें आज आने वाले 5 साल में करीब 40 लाख का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जिससे 50 लाख के नए जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अब देखिए, जब उद्योग आता है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप देखिए कि रोड्स हो, मेट्रो हो या पोर्ट्स हो, जैसा वाधवान पोर्ट का भी जो काम है वो भी चालू हुआ है। मुंबई में देखिए इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हुए। अब मैं अभी बजट के ऊपर, यूनियन बजट के ऊपर मैं गढ़चिरौली गया था, जहाँ पर पहले ऐसा बोला जाता था कि ये महाराष्ट्र का आखिरी का जिला है। अब ऐसा है, देवेंद्र जी ने खुद वहाँ पालक मंत्री बने हैं। दूसरी बात ऐसा है कि सबसे बड़ा स्टील का जो कारखाना आया है वो गढ़चिरौली में आया। तो आप देखिए 500 करोड़ रुपए वहाँ के रोड्स के लिए दिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारा पर कैपिटा इनकम सिर्फ मुंबई पुणे का अच्छा हो। तो ये बजट जो है, ये सबसे बड़ा चीज है कि ये पूरे महाराष्ट्र के जो जितने भी जिले हैं, वो सभी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिले अपना पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की, खुद का इनकम बढ़ाने की। गढ़चिरौली ऐसा माना जाता था कि हमारा पिछड़ा है, लेकिन अब उसमें जो तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, और मुंबई है, तो ये 2 हमारे एक यू कैन से कि दीज आर द 2 कॉर्नर्स ऑफ आवर स्टेट। One represent the financial capital of the country and one district was supposed to be a security hazard, जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था। तो ये दोनों जगह सब लोग डेवलपमेंट पे नजर रखे हुए हैं। उसके साथ
विकास के साथ विरासत। आप देखिए कि हर जगह जो प्रोविजन किया गया है, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप किए जाने हैं, जो छत्रपति संभाजी महाराज का भी स्मारक बनाने वाले हैं, शिवाजी महाराज का अपना आगरा में ये करने वाले, स्मारक बनाने वाले। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर हो, उद्योग हो या युवा हो, प्रदीप जी। इन सबके लिए बजट में कुछ ना कुछ दिया बाकरे है। और साहब- मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, एक चीज की, जैसा महायुति को एक प्रचंड मैंडेट मिला था पूरे महाराष्ट्र में, तो ये महाराष्ट्र के मैंडेट का सम्मान करते हुए महाराष्ट्र का हर जिला को कुछ ना कुछ मिला है। पहले कैसा होता था कि कुछ डेवलपमेंट मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक में होती थी, लेकिन अभी विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, ये, और मैं जैसा विदर्भ से आता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ किसानों का जो मुद्दा है, सुसाइड के बहुत बार इश्यूज होते हैं। तो आप देखिए, जो सबसे बड़ा, आपने देवेंद्र जी का अगर ध्यान से भाषण सुने होंगे तो उन्होंने दो चीजें बात की है। एक तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, नदी जोड़ प्रकल्प है। आप देखिए कि 4 से 5 साल में करीब 2 लाख करोड़ का इसमें निवेश हो रहा है, और इससे जो विदर्भ के डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बहुत बड़ा ड्राउट जो आता है उसके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो देखिए, हम बोलते हैं कि हमारे जो एग्रीकल्चर में देयर आर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स एंड देयर आर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। द शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम इज एड्रेस बाय नमो किसान सम्मान योजना, और जो एमएसपी खरीद में उसमें मदद करना वो है। लेकिन जब तक हम किसानों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके नहीं देंगे, आप देखिए कि सोलर पंप मिल रहे हैं। बाकरे साहब, मगर ये लाडकी बहन स्कीम का उद्धव ठाकरे जी का कहना है, दिस बजट इज बून फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स। ये कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बजट है, कॉन्ट्रैक्टर्स आर गोइंग टू बेनिफिट मैक्सिमम आउट ऑफ दिस। लाडकी बहन अगेन हैज कंज्यूम मैक्सिमम। आप किसान को सम्मान जो किसान को देना चाहिए, वेविंग ऑफ लोन्स, वो जो प्रॉमिस किया था कि आपको हम भरपाई करके देंगे आपके लोन्स, तो वो किसान का हुआ नहीं है। आप अडानी वाले इशू, अब एयरपोर्ट अडानी का है, तो आप दोनों एयरपोर्ट आप एक्सपेंडिचर क्यों कर रहे हो कनेक्ट करने के लिए? वो अडानी खुद कनेक्ट करके करना चाहिए इंटरनेशनल और लोकल एयरपोर्ट से डोमेस्टिक एयरपोर्ट में। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो उद्धव ठाकरे जी और ऑपोजिशन ने उठाया, that these things you're stuck up with the funds। और when we ask देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जी को पूछेंगे तो बोले ये फिजिकल डिसिप्लिन वाले बजट है। आपने कहा 16 करोड़ जॉब्स, जो 56 कंपनीज, 16 लाख करोड़ जॉब, but that was in the Davos agreement। I mean, what is in this budget? तो कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट करने वाला बजट है, ऑपोजिशन का कहना। बाकरे साहब, देखिए, उद्धव जी का विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ों का जो है वो अनुभव नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्टिंग और बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स और इन्हीं के साथ ज़्यादा डील करने के कारण सिर्फ उनको कॉन्ट्रैक्टर दिखता है। अब देखिए, अपने देवेंद्र जी ने गढ़चिरौली का पालक मंत्री पद लिया है, उन्होंने कोई मुंबई का नहीं लिया है। तो आज मैं आप सभी के पैनलिस्ट को इन्वाइट करना चाहूँगा, आप मेरे साथ गढ़चिरौली चलिए। आप देखिए क्या डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ का युवा कितना एक्साइटेड है, वहाँ जो सिक्योरिटी है वो। अब मुझे बताइए कि किस तरीके की ये बात हो रही है। अगर देश के रास्ते डेवलप हो रहे हैं, देश के पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, देश के एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं, तो भाई कोई ना कोई तो काम करेगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? दूसरी बात ऐसा है कि जो लाड़की बहन का आपने ये किया, लाड़की बहन योजना हम लोगों ने इलेक्शन के पहले दी थी, आज उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो मैं कहीं देख रहा था कि किसी ने बोला कि इसका बजट कम किया गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो एलिजिबल महिलाएं हैं, जो हमने निकष पहले दिन अनाउंस किए थे, उन सबको दिया जा रहा है। अब जो दिसंबर तक का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि 17,500 करोड़ रुपए लगे हैं, तो अब 17,500 करोड़ के हिसाब से हमने 36,000 करोड़ की प्रोविजन की है। अगर कल जाके कम ज्यादा होता है तो हमारी सप्लीमेंट्री डिमांड्स होती है, वो भी है। और देखिए, मैं नाम्बियार जी आपको बताना चाहूंगा, जो बजट है वो आइसोलेशन में नहीं देखा जाता। आप जैसे देखिए, समृद्धि महामार्ग है, ये डेवलप किया गया एमएसआरडीसी ने, तो प्रोजेक्ट है 60,000 करोड़ का, इन्होंने 60,000 करोड़ तैयार किए, समृद्धि मार्ग बनाया रिकॉर्ड टाइम में, उसका टोल आ रहा है अभी एन्युटी में, वो गवर्नमेंट उसको बेच के नया पैसा खड़ा करेगी और शक्तिपीठ मार्ग बनाएगी। तो ये कोई बजट के, हर चीज बजट से नहीं होती है। जैसे एमएमआर रीजन में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो मुंबई मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी करती है। तो बजट एक पूरे फिस्कल इशू, मतलब फिस्कल सिस्टम का एक हिस्सा होता है। और मेरा ऐसा कहना है कि अपोजिशन को क्रिटिसिज्म जो करना है वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करे। ये जो है ना, आज देश का युवा, देश का महाराष्ट्र की जनता एक एस्पिरेशनल क्लास है, आप उसको भी लॉजिक समझाइए ना। आप कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, किस लॉजिक से? I'll come back to you. Just 1 minute. No, contractor, come back to you because everybody else also has to speak. Yes. Dr. Malhotra, welcome to the show, ma'am. Thank you very much. I can see you now. So nice of you. नमस्कार। और बाकी दोनों लोगों को तो मैंने होली की शुभकामनाएं दे दी, आपको भी दे देता हूं, because I don't think we'll be meeting before होली। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। तो संजय द्विवेदी जी, यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल ठीक है, जो समीर भाकरे साहब बोल रहे हैं,
द्विवेदी साहब, आपको आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज मुझे अभी तक याद है जब हमारे आर पाटिल साहब होम मिनिस्टर हुआ करते थे, इत्तेफाक से हम लोग भी वहीं थे, गढ़चिरौली में थे, वहां पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। आपको मालूम है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के बाहर नहीं निकले, बाहर नहीं जा पाए, वो आगे नहीं गए। हम लोग तो आगे चले गए, हम तो जंगल में चले गए, सब लोगों का इंटरव्यू वगैरह भी किया, लेकिन आदरणीय सम्मानीय हमारे गृह मंत्री साहब जो थे आर पाटिल साहब, वो आगे नहीं गए। यहां पर आई एम सो हैप्पी पर्सनली, मैं आपको बताऊं व्यक्तिगत तौर पे कि देवेंद्र फडणवीस जी ने जाकर के बोला है कि गढ़चिरौली लास्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब आप बताएं सर, संजय द्विवेदी जी, आपने समीर भागड़े साहब बीजेपी के, उनको आपने सुना, अब इस बजट को लेकर के आपके खुद के क्या विचार हैं, वो जरा बताएं, बोलिए सर। देखिए, समीर बागड़े जी का मैंने सुना सर, बड़े ध्यान से सुना, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा कम हूं असल में, तो उनकी ज्यादा बातें मैं समझ में नहीं आई असल में। सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने 7 गारंटियां दी थी, 7 बातें बताई थी। और उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी थे, जिन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा साहब, जब 52 रुपए हमारा डॉलर का दाम था, तो वो कह रहे थे प्रधानमंत्री का सम्मान गिर जाता है। आज डॉलर के दाम जो हो गए हैं 87 रुपए 50 पैसे हो गए। अभी पीएम साहब ने कहा कि साहब हमारा जो फास्टेस्ट ग्रो इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट हो गई हमारी, FDI 709 बिलियन आई है। तब महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, तब डॉलर का दाम क्यों बढ़ रहा है? आप जबकि जीएसटी एक एक चीज में जाए, जो मूलभूत सुविधाएं हमारी हैं, जो मूलभूत चीजें हमारी हैं देश के लोगों की, ईस्ट इंडिया कंपनी मुझे याद आ गई, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है सर भारत में। आप बधाई दे दिया अडानी जी को, 750 मिलियन डॉलर के ऊपर कर्ज है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का आगाज जो है वो भारतवर्ष में हो गया सर, धीरे धीरे आप देखिएगा। तो मैं ताली बजाता हूँ सर, धन्यवाद मोदी जी का कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस देश में की है। तो आप कह रहे हैं कि अडानी जी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है? जी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी उन्होंने जी। अब उसके मालिक कौन है ये नहीं पता मुझे सर, मालिक कौन है मुझे नहीं मालूम। तो मैं वही कह रहा हूँ सर कि जब हमारी इतनी इन्होंने बताई बागड़े साहब ने कि इतनी चीजें हमने दे दी, तो जैसे कि लाडली बहन योजना में बजट में पैसा नहीं आया था। जो लाडली बहन योजना में जो पैसा दिया गया था वो अजय दादा पवार कहाँ से लाए थे, एकनाथ शिंदे जी कहाँ से लाए थे, और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी कहाँ से लाए थे? क्योंकि उस समय चुनाव था, चुनाव में पैसा खर्च होना था। 5 लाख बहनों को ज्यादा पैसा दे दिया गया, जिन बहनों को अब हटाया जा रहा है। तो मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई 5 लाख बहनों को ज्यादा पैसा क्यों दिया गया थी, जल्दबाजी क्या थी, और वो पैसा कहाँ से आया? जो अभी बता रहे हैं जी दादा पवार कि साहब मैं 2100 रुपए नहीं दे पाऊंगा, तो 21 रुपए क्यों नहीं दे पाएंगे? जब वो पैसा आ सकता है, जब उस पैसे को आप लाके बांट सकते हो, वो तो बजट में भी नहीं था। अब वो कहाँ से आया था, बीजेपी प्रवक्ता बताएंगे, मुझे तो नहीं मालूम है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, तो वो बताएंगे कहाँ से पैसा आया था और पैसा दिया गया। तो 21 रुपए क्यों नहीं दे पाएंगे? शिव भोजन थाली जो है वो क्यों नहीं शुरू हो पाएगी? और हमारे जो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, जो 60 साल के ऊपर लोग थे, वो योजना क्यों नहीं शुरू हो पाएंगी? इन्होंने किसानों के लिए कुछ वादे उसमें किए थे, जो 7 गारंटियां थी उन्होंने किसानों के लिए कुछ वादे किए थे, वो वादे कब पूरे होंगे? आप देखिए 3 काले कानून आए, 3 काले कानून जब वापस हुए, जब 700 किसान मर गए, जब बलिदान हो गए, वो शहीद हो गए, वो तो किसानों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की ये है। अब आप आइए दूसरी तरफ, जो इनकी एक बैंक है, जो बैंक इनकी बैंक का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, एक बैंक बंद कर दी गई, आरबीआई द्वारा बैंक बंद कर दी गई। उसमें जो लाखों हमारे जो जिनके वहां पे अकाउंट्स हैं, 6 महीने के लिए वो बैंक चालू नहीं हो पाएगी। तो अगर चालू नहीं हो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं, कौन से वाले बैंक की बात कर रहे हैं? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, हाँ, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, जी जी बोलिए। 6 महीने के लिए जी हाँ, अब 6 महीने तो लेन देन नहीं हो सकता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एकदम इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी वो आयरन लेडी थी जिनकी ये लोग बुराई करते हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो। माननीय राजीव गांधी की वजह से, श्रद्धेय राजीव गांधी की वजह से आज हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके देखिए डिबेट कितनी बढ़िया कर रहे हैं, कितना गर्व महसूस हो रहा है। रेलवे में पहले द्विवेदी जी
द्विवेदी जी जैसे गढ़चिरौली को स्टील सिटी बना रहे, कोई पहले सरकार वहां पर जाने को कतराता था, आज फडणवीस जी खुद वहां पर स्टील सिटी बनाने का पूरे प्लान कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब देखो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का गिनती, बोले कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, स्टार्टअप हब, पूरे देश का स्टार्टअप हब महाराष्ट्र बन गया है। रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, पहले यहां से लोग माइग्रेट हो रहे थे, अब वापस पूरे बैंगलोर से पूरे आईटी के लोग यहां पर माइग्रेट हो रहे हैं महाराष्ट्र में। तो एक के बाद एक अच्छा चीज, लो कॉस्ट हाउसिंग, पीएम आवास योजना, उसको जबरदस्त रूरल एरियाज में लागू कर रहे। तो द्विवेदी जी बजट में सब कुछ है, अब क्या विरोध है? बस उद्धव ठाकरे जी बोल रहे कि कॉन्ट्रैक्टर को फायदा है, कॉन्ट्रैक्टर को फायदा है। अभी कॉन्ट्रैक्टर को फायदा कैसे फायदा होगा? दीदी देख, कागजों में सब कुछ है, कागजों में सिलेंडर ही बांट दिए गए, आपके शौचालय बनवा दिए गए, मकान ही बनवा दिए गए, हर घर पानी पहुंच गया। कागजों में तो है ना, कागजों में तो सभी रहता है, कागजों में आप कुछ भी रख ले। लेकिन जब आप जाइए किसी गांव में, वहां पे देखिए पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और जो शौचालय बने उन शौचालयों की स्थिति क्या है, या जो 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 दिए गए गैस कनेक्शन दिए गए उनकी स्थिति क्या है। देखिए जमीन इसलिए बात करनी चाहिए हमको, हम लोग कोई बहुत बड़े वो नहीं है कि हम हवा में बात करें, हम तो जमीन की बात करते हैं कि आपने अगर कोई योजना चालू की है, उस योजना का जमीन स्तर पे क्या महत्व है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, उसके बारे में ठाकरे साहब से बात करेंगे सर, किस तरह से लागू हुई। जी मेन बात जो मेरी बात समझिए कि वो कहने से कुछ नहीं होता है, कहने तो बहुत कुछ, 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, 15 लाख रुपए दे रहे थे, क्या मिल पाया? 52 रुपए जब था तो हमारे पीएम साहब कहते थे सब देश का सम्मान गिर रहा, क्या सम्मान नहीं गिर रहा देश का? जब वहां बाहर गए थे तो वहां कह रहे थे भारत देश में पैदा होना गुनाह है, वो तो यहाँ तक कह चुके हैं भारत देश में पैदा होना गुनाह है। बायोलॉजिकल फादर बन गए थे सर, ऐसा नहीं बोला माता जी, सर ऐसा नहीं बोला सर ऐसा नहीं बोला था। शंघाई में जो मीटिंग हुई थी, मैं एग्जैक्ट शब्द बता देता हूं, आप तो बड़े प्यार से बता रहे हैं द्विवेदी जी, आपने तो बहुत प्यार वाले शब्द इस्तेमाल किए हैं। मोदी जी ने यह कहा था कि 2014 के पहले लोग ये बोलते थे कि पिछले जन्म में हमने क्या पाप किए थे कि हमें भारत में जन्म लेना पड़ा, ये बोला था उन्होंने शंघाई में। अब आप बोले, बोलिए द्विवेदी। अब देखिए सर कितनी अच्छी चीजें बोली। अब आज आप कह रहे थे बजट मैंने ये चीज दी है, हमें बजट। अच्छा दूसरी चीज एक बता दें, जो आप कह रहे हैं पालक मंत्री बन गए हैं हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, और उसका विकास कर रहे हैं, तो बाकी जो हत्याएं हो रही हैं, जो पहले में सुरक्षित नहीं है, चाहे पूना हो, चाहे हमारी रक्षा, जो हमारी जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, उनकी लड़की पर जो अटैक हुआ, जो उनकी लड़की के लिए हुआ, तो वो किसकी कौन जिम्मेदार होगा इसका? अगर एक केंद्रीय मंत्री की लड़की सुरक्षित नहीं है तो शायद हम आप तो कोई सुरक्षित नहीं। तो इस तरह से राज चलाने का क्या मतलब है जी? इस तरह से राज चलाया जा रहा है, इससे क्या मतलब है? द्विवेदी जी मैं आपके पास वापस आता हूं। अभी मैं एक चीज और याद दिला दूं, एक चीज मैं आपको याद दिला दूं। अभी बोलिए। ये कहा गया जितने सांसद हैं वो एक गांव उनके नाम रहेगा। आप सर्वे करा लीजिए, अभी नहीं हुआ वो स्कीम। जितना सांसद है, नहीं हुई सर, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, जो भी है, उनमें आप एक बार सर्वे करा लीजिए कितने गांव, उन गांवों की हालत बदली कि नहीं बदली। देखिए भारतीय जनता पार्टी है, ये झूठ फरेब इसमें सबसे आगे है। शायद मोदी जी को आने वाले दिनों में विश्व में आ जाएंगे। जो अभी हम लोग कहते हैं ना, जब नोबेल पुरस्कार मिलता है, विश्व में उसमें शामिल होना पड़ता है, तो झूठ बोलने में और सब करने में सबसे आगे द्विवेदी जी। आई थिंक यू आर बीइंग अनफेयर। द्विवेदी जी आप जरा अनफेयर बात कर रहे हैं। ऐसा है कि एटलीस्ट मोदी जी ने इंटेंट तो अपनी सबके सामने प्रदर्शित की है। सर सबसे बड़ी बात यह होती है कि अंदर से आपका इरादा क्या है। इरादा तो अच्छा है ना सर, अब इम्प्लीमेंट भी होगा। देश बहुत बड़ा है सर। बाला साहब ठाकरे ने, सर मेरी बात सुनिए बजाज जी 11 साल हो गए, अब वो बात नहीं है, बच्चे हैं सर। 153 करोड़ लोग हैं सर। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ सर, मैं आपकी बात मानता हूँ। 83 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं। ओके सर, मेरी बात सुनिए सर। मैं आपकी इजाजत हो तो डॉक्टर मल्होत्रा के पास चले जाऊं सर, वो अभी तक कुछ नहीं बोली है। एक मिनट सर बस प्लीज। डॉक्टर मल्होत्रा,
मैम थैंक यू वेरी मच। अब आप ये बताएं मैम कि आपको इस बजट से क्या लगता है कि महाराष्ट्र का जो बजट आया, नंबर 1, नंबर 2, महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस वक्त है दैट इज वेरी ट्रबलिंग। मतलब जिस प्रकार बीड़ में जो संतोष देशमुख जी का जो मर्डर हुआ और उसकी वीडियो बनाई गई और उसको हर जगह पे अब वायरल किया गया, हर एक ने देख लिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और परभरी में जो डेथ इन कस्टडी हुई है, पुणे में जो दो इंसिडेंट हुए हैं, दे वेरी वेरी ट्रबलिंग। व्हाट इज गोइंग ऑन? आई आस्क यू मैम, इज इट बिकॉज नाउ देयर इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया जिसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट पहले भी होते थे लेकिन आज की तारीख में बहुत ज्यादा गंभीर लग रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे इनको बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, या फिर वास्तविकता में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है महाराष्ट्र में? डॉक्टर मल्होत्रा फ्रॉम दी शरद पवार एनसीपी, प्लीज बोलिए। See, basically, I would like to take the second question first because Ji, that's please go ahead, ma'am. I mean, that is like Suraksha. So Suraksha, even the Mahila Suraksha also comes into that. Yes, so ma'am. I would like to answer that question first. See, basically, as we have seen, I do agree that in the social media, okay, there are a lot of things which we come to know through social media. There are things which may happen in the remote places, and then somebody takes the video, and then the video is like we come to know about it. Many times, if the things don't reach the police stations or the police are, it reaches the police station, but then the FIRs and all are not lodged because basically here now the situation is such that even the police, even if they want to do something good, but they are under the pressure of the political parties. This is seen that they are under the tremendous pressure of the political parties. I don't think any single-handedly the police can really, stand against this system as such, which has been developing now. And also social media is giving them lot of lot of publicity for people who should just throw away the money, and then we have seen some videos where somebody is standing on the car and then just throwing the money to people, and that sort of the Gunda Raj and glorification of the Gunda Raj. So that is what is happening really. And I thought that Maharashtra police, they were very strong based and all, but because of this political situation and something like people are also these goons, they are also now thinking that nothing is going to happen to them, so why not just enjoy when the things are there, and they are putting undue pressure on people. And we have seen not only these videos, Santosh Deshmukh and all, that is absolutely terrible. Dr. Malhotra, yes, Dr. Malhotra, now look at this budget. 40 lakh crore investment. Ajit Pawar ji ne bola 40 lakh crore investment, 50 lakh jobs create करेंगे. 3 airports मुंबई के अगल बगल में, including Vadhavan, the new Navi Mumbai, and already existing 3 airport इस वक्त 20 लाख घर का promise है. Healthcare बोले every 5 kilometers में healthcare facilities compulsory for the people, जो गरीब से गरीब है, जो आयुष्मान के साथ जुड़ा हुआ है. तो it has everything, coastal development, विकास भी, विरासत भी, 250 एकड़ नवी मुंबई में इनोवेशन सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, यानी कोई ऐसा सेक्शन छोड़ा नहीं है इस बजट में. ऐसे तीनों का कहना है, अजित पवार जी, फडणवीस साहब एंड एकनाथ शिंदे जी. Now how confident are they? They are very confident, Dr. Malhotra. Very confident when they make the announcements. Definitely, they are very confident when they make the announcement. All these budgets and all, everything, it looks very nice on the paper. But what about the implementation? Now we'll have to really go back and see that how many of these budgets or so last year or before that, whatever the budgets were discussed, what has really come to? How much of that money actually is being utilized, and how much has been really done for the people? What has come to the जो हमारे कांग्रेस के जो स्पोक्सपर्सन थे, जो बोल रहे थे, जो ग्राउंड रियलिटी, what is the ground reality? And basically, what have they really told about the किसान उनके लिए क्या है, हेल्थ सेक्टर के लिए भी क्या है, हेल्थ सेक्टर. तो यहाँ पर मैम एक बात आई है सामने, मैं उसके बाद चाहूंगा कि समीर बागरे साहब उस पे जरा रोशनी डालें कि ये कहा जा रहा है कि जो लाडकी बहन स्कीम है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा उस तरफ वहां पर बजट एलोकेशन में चला गया, तो किसानों के लिए कुछ कमी आ रही है बजट में. So we are not able to give money to the farmers. Is that, have you heard this, ma'am? Yeah,
Yeah, but then how is it that it is fair? Just because the elections were there, therefore they were in a hurry to distribute the money to everybody. If they wanted to sort of curtail and now they are saying that, oh, this only so and so people, so and so ladies will get the Ji. this thing. So why didn't they do that very properly before? Why were they in so much of a hurry to just बांटने के लिए क्यों? क्यों? That Election is देना, quite ma'am. shows that it was just for the election purpose. Of course. So this is what BJP and they always make big tall Ji. promises just to influence the election results. That is Close always one. being But, seen. but you know, Dr. Malhotra, I remember Sharad Yes. Pawar Sahab bhi, when he was early the CM and when the next election के वक्त पर, you know, rickshaw schemes allow किया था पूरे license के साथ distribution. I mean, I think everybody is doing it. But how do you see? Pawar Sahab का ठीक था, इन लोगों के सिर्फ he really implemented it. But these Mahayuti is not doing it. You want to say that? See, what I want to say ki, is it fair that you're giving extra to some ladies and then and not giving to the kisan? The किसान जो महाराष्ट्र में किसान जो मर रहा है, किसान की इतनी आत्महत्या हो रही है, what about उनके जो कितने हैं? Don't they deserve some loan waiver which Pawar Sahab had done it in his time? Don't they deserve a MSP? Don't they deserve some irrigation money for the irrigation projects and which going to completion? A lot Right. of projects No, are- you're talking about the scam, the rupee one crop insurance scam जो है गरीबों को तो किसान को तो नहीं मिला, वो पूरे स्कैम है और मुंडे जी वगैरह अभी भी वो थ्राइव है, कुछ हुआ नहीं है स्कैम का, अलग अलग स्कैम्स है। इनफैक्ट देवेंद्र फडणवीस जी ने एकनाथ शिंदे जी का हर चीज का इंक्वायरी बिठा दिया, कहीं 4,000 करोड़ का स्कैम, कहीं 5,000 करोड़ स्कैम। You want a proper investigation, Dr. Malhotra. Definitely, we want the proper investigation. It is people's money, people's hard-earned money. It is in the way of tax they are getting, and why not? It should be utilized for the big. I agree with you, and I think Devendra Fadnavis ji will most definitely investigate this properly. I think ये rupee scam जो है, क्योंकि फडणवीस साहब ने announcement करी है, because I trust him. Let me tell you, he's one of the most honest guys you'll ever meet, irrespective of political ideology and things like that. फडणवीस साहब की honesty के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता. Now समीर बागरे साहब, दो सवाल उठते हैं इससे, एक तो जो द्विवेदी साहब ने कहा और वही चीज जो डॉक्टर मल्होत्रा ने कही, वो क्या है कि सर ऑल दी स्कीम्स आर वेरी गुड ऑन पेपर, जबरदस्त लगती हैं सारी स्कीम। जैसे डेवोस गए हमारे देवेंद्र फडणवीस, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट योरसेल्फ, यू नो इट सर, डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ MOU? लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। MOU कुछ भी साइन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, फाइनली हाउ मच इज द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज रियली कम? इवन अर्लियर एकनाथ शिंदे साहब हैड गॉन टू डेवोस, how much of that investment has actually come to Maharashtra and so on? Has any audit been done on that? That is number two. Has any audit been done on that? That is number one. Number two, in terms of implementation on the ground, जमीन के ऊपर वास्तविकता में जो स्कीम्स हैं वो कितनी इंप्लीमेंट हुई हैं, उनको लेकर के बड़े सवालिया निशान है सर। किसानों को लेकर के आपने किसानों की बात करी, बहुत अच्छी बात करी, आपने कहा कि रिवर कनेक्टिंग ऑफ रिवर स्कीम चल रही है वगैरह वगैरह वगैरह, which is fantastic in a way and very bad environmentally, but we'll discuss the environment aspects later. लेकिन पानी के लिए, पानी के हिसाब से बहुत अच्छा है। किसानों को जो पैसा मिलना चाहिए था सर, ये बात हर जगह चल रही है बाकड़े साहब। अब आप ये बताएं कि वास्तविकता ये है या नहीं है। I have still not been able to get a proper answer कि लाड़की बहना स्कीम की वजह से किसानों के हिस्से में जो जाना चाहिए था वो नहीं गया है। Is that correct, sir? बागड़े साहब। Some disturbance is there. What is the disturbance that people are getting, नहीं please? नहीं अभी आ रहा है आवाज। जी बोलिए। देखिए लाडली बहन योजना जो है वो उसका कोई फॉर्म और कंटेंट तो चेंज नहीं हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा अपोजिशन क्यों कंफ्यूज है। अपोजिशन हमने जो मानक चुनाव के पहले डिसाइड किए थे उस वही मानक पे अब पेमेंट हो रहा है। तो जो हमारा अनुभव था 17,850 करोड़ दिसंबर तक का पेमेंट हो चुका है, तो उस हिसाब से हमने 36,000 करोड़ का प्रोविजन किया। तो किसानों के लिए कोई उनका किसानों का हमने कोई अमाउंट छीन के कोई महिलाओं को नहीं दिया। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ अपोजिशन के आरोपों पे कि ये नहीं चाहते कि महाराष्ट्र की जो गरीब महिलाएं हैं उनको मदद मिले, ये नहीं चाहते किसानों का रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट हो। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, आप लोगों ने शायद वो उसका कोई जिक्र नहीं किया
क्या आपको पता है कि किसान को सोलर पंप फ्री दिया जा रहा है महाराष्ट्र में? क्या आपको पता है कि 45 लाख किसानों का 7.5 एचपी का जिनका पंप है उनके जीरो बिल आ रहे हैं? तो ये जो है, और किसानों का पूरा जो बिजली की व्यवस्था है 16,000 मेगावाट की, वो पूरी सोलर पे की जा रही है, जिसमें सरकार उनको रात में नहीं दिन में बिजली देने वाली है। तो आप देखिए ये जो बेसिक किसानों के मुद्दे हैं, क्योंकि देवेंद्र जी जो है वो पूरे महाराष्ट्र के गाँव में और शहरों में हर जगह जाते हैं। जैसे ये उद्धव ठाकरे साहब समान वो घर में नहीं बैठे रहते, पूरे महाराष्ट्र में जाते हैं। दूसरी बात ऐसा है, शरद पवार जी को इतने सालों का अनुभव है, एक रिस्पेक्टेबल लीडर जी। है, लेकिन इतने साल होने के बाद भी उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हुए भी महाराष्ट्र के लिए बेसिक इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं तैयार की। आज पूरे देवेंद्र जी पूरे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कैनाल्स बना रहे, इरिगेशन डैम्स बना रहे। तो मैं ये नहीं समझता कि किसानों और महिलाओं में कोई दूजा भाव है। किसानों को किसानों का मिल रहा है, महिलाओं को महिलाओं का मिलेगा। और आप देखिए जो महिलाएं हैं ये उसी में से कुछ ना कुछ अपना रोजगार क्रिएट कर रही है, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हो रही है। नागपुर में तो एक सोसाइटी बन गई जी, ये सब महिला एकत्रित आके उन्होंने 30 लाख रुपए का कॉर्पस बनाया। तो जब ये पूरा डेवलपमेंट का एजेंडा चल रहा है, और मैं द्विवेदी से बोलना चाहूंगा, आप एक रिजर्व बैंक को अगर ट्रस्ट करते होंगे तो आप रिजर्व बैंक के साइट पे जाइए, वहाँ एक एम्प्लॉयमेंट का रिपोर्ट है। जो ईपीएफओ का ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें 20 के ऊपर जहां एम्प्लॉयज होते हैं उनको ईपीएफओ भरना पड़ता है, वो पिछले 6 साल में 6.5 करोड़ की नई ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट हुई है। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर की 13 से 14 करोड़ का पिछले 6-7 साल में एम्प्लॉयमेंट। ये मेरे आंकड़े नहीं है, भाजपा के नहीं है, ये रिजर्व बैंक के और ये डॉक्यूमेंटेड है। तो आप जो है वही कैसेट आप पुरानी मत लगाइए कि 15 लाख है। आप डॉलर की बात कर रहे हैं, डॉलर हिंदुस्तान का जो रुपया है वो डॉलर के खिलाफ सबसे कम गिरा है। आप देखिए पूरे दुनिया की करेंसी डॉलर के खिलाफ, वो एक अलग विषय है, वो बहुत ज्यादा उसको डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन सबसे कम तो हिंदुस्तान का रुपया गिरा है। आप जब मोदी जी ने बोला था डॉलर का, उस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान का रुपया गिर रहा था, बाकी करेंसी नहीं गिर रही थी। आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रिजर्व बैंक के भी चेक कीजिए। सेकंड थिंग सर ऐसा है कि जो जो रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट है, आप इसको समझिए, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर द फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र। जो ड्राउट प्रोन एरियाज है, आप मुझे बताइए, इतने साल राष्ट्रवादी की, कांग्रेस की और इनकी सरकारें रही, इन्होंने विदर्भ और मराठवाड़ा को पूरा निगलेक्ट किया। ये कैसी बात है? आज पूरा देवेंद्र जी हर डिस्ट्रिक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, देवेंद्र जी ने पूना में पूरे ओपन पब्लिक मीटिंग में कहा है कि जो उद्योगों को तकलीफ देगा उस पर आप मौका लगाइए, पुलिस कमिश्नर को डायरेक्शन दिया है। इससे तो ज्यादा कोई सख्त बोल नहीं सकता, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में महाराष्ट्र में Bakre sahab, I want to stop you there, because why? Because farm loan waiver is a big thing. बहुत जरूरी था। कोकाटे एग्रीकल्चर मिनिस्टर खुद कह रहा है कि देयर इज नो मनी लेफ्ट फॉर फार्म वेवर। और जो इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स के लिए ठीक है, आप सोलर प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड, कम रेट, बट फार्मर्स वांट 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। सर वही तो किया जा रहा है। आप 13,000 करोड़ की बजट होने वाली है। नहीं, कब होगा? फार्मर्स बोल रहे हैं हमको 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी दे दो। देखिए देवेंद्र जी ने 3 साल पहले जो सोलर मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना 2.0 थी, वो जो शुरू की सर 16,000 मेगावाट के जो अपने ग्रिड पे है। आपको अगर पता होगा तो महाराष्ट्र पूरे देश में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर कंज्यूम करने वाला स्टेट है। यहाँ टोटल कंजम्पशन के 30% अपना बिजली का बिल जो कंजम्पशन है वो किसान करते थे, और किसानों को हम जो 9 रुपए में हमको बिजली पड़ती थी, हम 1.5 रुपए में दे रहे हैं, और वो भी रिकवरी नहीं हो पा रही। तो आज देवेंद्र जी ने जो स्कीम लाई है उससे पूरा किसानों के जो बिजली की आपूर्ति है, द एंटायर रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी मेड बाय सोलर। सुनिए, आप मेरा जवाब पूरा सुनिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 3 साल पहले स्कीम चालू हुई है, 2 साल इसको और लगेंगे, एंड व्हेन द complete transformation of agriculture will be on solar. Now you will see कि किसानों को भी पूरे 24 घंटे बिजली मिलेगी। उसके साथ जो रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल के रेट्स आज महाराष्ट्र में एज कम्पेयर टू सम अदर स्टेट्स आर हाई, बिकॉज वी आर रिक्वायर्ड टू क्रॉस सब्सिडाइज द एग्रीकल्चर कंजम्पशन, वो भी कम होने वाला है। सर ये जो चीज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। जो सरकारों ने 60 साल में सर लोगों के बैंक अकाउंट नहीं खोले, वो हमको पूछ रहे कि आप 3 साल में ग्रिड कैसे अरे भाई साहब 55 करोड़ के जनधन खाते मोदी जी ने खोले ना। द्विवेदी जी जो पार्टी के साथ बैठे हैं, हमारी डॉक्टर साहब जिनके साथ बैठी है, वो पार्टी सत्ता में तो वो अकाउंट नहीं खोले, शौचालय नहीं दिए, गैस नहीं दिया, और हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैनल मुंबई का। सर आपने शौचालय मेंशन किया। I want to say that farmer loan waiver is effective. Understand
the seriousness of the झूठ government बोलने as की भी हद है every बागरे sector जी। is concerned. अरे लफाफा लोग waiver के बाद झूठ त्रिवेदी जी, करवा आप दें। तो कुछ नया लेके इतना आइए, झूठ आप- मत बोलो, आप- जरा आपकी झूठ एक ही शर्मा कैसेट जाए। रहती है, झूठ भी कहने आपकी एक ही लगे, कैसेट- वाह अरे वाह झूठ वाह ना, वाह। ये facts है ना, इतना आप झूठ रोड मत पे आइए, बोलो। कोटरोली में आइए, इतना नागपुर कुछ में आइए, इतना पुणे में झूठ चलिए, मत बोलो सर कि सर झूठ सर भी सर शर्मा सर जाए। बागरे साहब किसने चालू किया? बागरे साहब आई हैव अ वेरी झूठ फंडामेंटल क्वेश्चन हाँ। मुंबई बागरे की साहब बैठक बागरे साहब आई हैव अ वेरी किसने चालू फंडामेंटल किया? क्वेश्चन सर प्लीज सर जो आप टॉयलेट्स बना रहे हैं हर जगह पे विच इज वेरी गुड इट्स अ ग्रेट स्कीम इट वाज ऑलरेडी देयर बट द कमिंग ऑफ मोदी जी इट रिसीव्ड अ ह्यूज फिलिप कि हर जगह पे हर घर में शौचालय होना चाहिए सर लेकिन all the scientists all the other social scientists they say and I think Dr. Malhotra will agree with me sir why do we have water closet based toilets when there is no water वैसे ही पानी की इतनी किल्लत है हर जगह पे why didn't we sir IIT our own Bombay IIT and IIT Kharagpur they had come out with these chemical toilets the other guys had come out with these bio toilets where water is not required vacuum toilets आप पानी वाले टॉयलेट हर जगह बना रहे हैं सर पानी पीने को नहीं है टॉयलेट में आदमी क्या सर, क्या आप- इस्तेमाल करेगा आप- नहीं आप बताइए सर मुझे अगर आप बोलिए देखिए लोगों को पीने का पानी नल से जल में पहुंचाया जा रहा है टॉयलेट के लिए तो पानी उपलब्ध कराई जा रहा है ना और देखिए नहीं, सर सर, कैसा होता है प्लीज, कुछ सर। चीजें जो है ना वो ड्राइंग रूम के डिस्कशन में नो अच्छी सर लगती है। सर गांव सर की हम लोग reality ड्राइंग रूम अलग में नहीं रहती है। रहते गांव सर में हम लोग जो बाहर एक जाते हैं ही सर चीज- देखिए सर गांव बागड़े में साहब जो वी आर विद यू चीजें उसी type की बागड़े साहब वी आर विद यू पड़ेगी। सर अपनी सर नजरअंदाज मत कीजिए इसको यू हैव नजरअंदाज टू नहीं कम कर आउट रहे विद अ सर। बेटर See, स्कीम if some- मैं आपको सर बताना चाहता हूँ इफ समथिंग गुड इज कमिंग अप वी विल अडॉप्ट इट ऑफ कोर्स जो हम लोग यू मस्ट हम तो रेडी है ना हम Number तो नई two. नई टेक्नोलॉजी रिव्यू करने के लिए Sir, before I go back to we are Trivedi not ji- saying that we have solved all the issues of the country I agree with it's you. an ongoing process आई एग्री विद यू बागड़े साहब नंबर 2 जो आपने कहा ना रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विच इज अ फैंटास्टिक थिंग वेरी गुड लेकिन सर यहां पर सबसे बड़ी चीज जो विदर्भ में जितने भी लोग आप शायद विदर्भ से ही हैं जितने भी लोगों ने फार्म क्राइसिस पे काम किया है विदर्भ की उन्होंने सबसे पहली चीज यही कही है कि फार्मर्स को अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन planting the same cotton which you have been planting since the time of the Mahabharata. There is no market for that cotton. Sir, Sir, that's you why will now in you this will have to budget make the you farmers see- adapt. हाँ बोलिए सर अब आप बोले प्लीज इन दिस बजट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एआई यूज में जी। 500 crores का प्रोविजन किया दैट्स व्हाई वी आर अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी सर एंड वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट जैसा आप विदर्भ में बात कर रहे हैं कि कॉटन और सोयाबीन की वैसे भी पश्चिम जी। महाराष्ट्र में जो गन्ने की खेती हुई इसके कारण वाटर लेवल नीचे चले गया Correct. सो दिस इज द इशू व्हिच हैज बीन there for many years now the government is all seriousness is addressing with sincerity I am not saying it's about any opposition or any media issue it's a we have to work together with all the stakeholders and we have to address that problem sir हर साल हम आई एग्री विद यू सर कोशिश कर रहे हैं सर आई हम एग्री लोग विद यू और अगर आपको कुछ काम करना है सॉरी द्विवेदी जी मैं आ रहा हूं आपके पास ये सब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट सर इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत काम किया है बागड़े साहब और अगर आपको वास्तविकता में इस पे काम करना है ना तो सर महाभारत में अगर आप पढ़ें आप तो वैसे भी बीजेपी से ही हैं सर देर आर 8,000 वेराइटीज ऑफ कॉटन मेंशन 8,000 वेराइटी हैं कपास की जिसमें से जहां तक मैं जानता हूं सिर्फ यूनिवर्सिटी में सीड्स रह गए हैं कुछ 250-300 वेराइटीज के आई होप वी विल बी एबल टू प्रिजर्व आवर इंडिजिनस कॉटन और उसको वापस लाना चाहिए मेरा ये सोचना है सर ये जो जी I want to Pradeep just to supplement your views sir just जी। to supplement your views प्लीज गो अहेड सर Sir, basically, if you see the budget of Honorable Nirmala Sitharaman ji this year, she has said that in 100 district agriculture enhancement program will be launched. It Ji. will include improvement of the cropping pattern. It will include improvement of every service, and you will be happy to know that cotton improvement is one of the product taken by the union government. सर कॉटन रिजर्वेशन आप जैसे जो वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट है सर इनका हमेशा बीजेपी सुनती है सर आप मतलब आपकी आवाज दिल्ली तक है मुझे पता है आपकी आवाज दिल्ली तक जाती है तो इट हैज ऑलरेडी बीन हर्ड एंड वी विल इंसिस्ट देखिए मैं आपको एक सिंसियरली मतलब मेरे अपोजिशन के मित्रों को भी बताना चाहता हूँ जी। इफ एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशन इज देयर वी आर ओपन टू चेंज वंडरफुल प्रदीप जी You know, please. Divedi there ji, is बात- nothing wrong in द्विवेदी जी, listening to a good suggestion आप आलोचना What's कर रहे wrong? हो आप आलोचना कर रहे हो टॉयलेट शौचालय के आप आलोचना कर रहे हो कि नल से जल फेलियर है मगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड WHO ने मोदी जी को अप्रिसिएशन दिया है
कि ये नल से जल से आपने 40,000 पर घर रूरल एरियाज में आपने बचाया, जो डिजीज के लिए जो रूरल एरियाज में घर इस्तेमाल करते, जो शौचालय घर में अंदर बांधने से ये अलग अलग बीमारियों से बचा दिया है, वही करीबन 70,000 यानी 70,000 पर एनम आपने बचा दिया एक घर का। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मोदी जी का तारीफ कर रहा है। द्विवेदी जी, यहां पर ऑपोजिशन क्यों कह रहे हैं कि नल से जल खराब है, नल से पानी नहीं आया, टॉयलेट हर घर शौचालय एक बैड स्कीम है, पूरे दुनिया तारीफ कर रहा है मोदी जी का। द्विवेदी जी। पीर जी, अभी मैं बात बागरे जी आवाज ने कही कि साहब हमारे पास जो रोजगार बहुत ज्यादा उपलब्ध है। अभी 40,000 जो लोगों को निकाला गया है एक बड़ी कंपनी द्वारा, शायद बागरे जी को मालूम है कि नहीं, उनको मैं बता दूं कि 40,000 लोगों को निकाला गया है, जो एम्प्लॉय थे उनको 40,000 लोगों को निकाला गया है। और सबसे बड़ा अगर एम्प्लॉयमेंट होता है तो एम्प्लॉयमेंट जगह है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि उस रियल एस्टेट में हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ती, इंजीनियर, सुपरवाइजर या जो 300 तरह के मटेरियल्स में लगते हैं रियल एस्टेट में, तो सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो रियल एस्टेट में एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा खपत होती है। लेकिन ये रियल एस्टेट से बंद है, रियल एस्टेट कहीं चल ही नहीं रहा, सब 2-4 सरकारी काम चल रहे होंगे, रियल एस्टेट बंद है। तो आप कैसे कह सकते हैं? तो 40,000 जिस देश में 40,000 बेरोजगार हो गए साथ में, तो उसमें आप कैसी बातें कर सकते हैं? आप जो बात कह रहे हैं मैं बता दूं आपको, जो आपने कहा कि 20 आदमी ज्यादा जो है वो पीएफ देना पड़ता, कोई कंपनी नहीं देती है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी पीएफ देती नहीं, पीएफ कराती नहीं है, बहुत स्पष्ट मैं बता रहा हूँ आपसे। आप चाहे जानकारी ले लीजिए, बड़ी कंपनी छोड़ दीजिए, आप जो बाकी कंपनियां हैं वो कोई ना ईएफ देती ना पीएफ, उनका पूरा काम ऐसे चलता है सिर्फ तनख्वाह देके। पहली बात, शौचालय की आपने बात की, शौचालय में जो वेस्ट पानी है उसके लिए सोकपीट बनता है, कहीं सोकपीट बना है? शौचालय अगर बनाएंगे, आप जो बात अभी आपने कही थी कि आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे ने बिना पानी की बात की है जी। तो यहाँ तो जो बन रहे शौचालय वो पानी वाले बन रहे हैं जी। और पानी वाले शौचालय में बन रहा सोकपीट बन नहीं रहा, तो शौचालय चालू कैसे हो जाएंगे? करेक्ट। मैं तो जमीन हकीकत बता रहा हूँ आपको ना, मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूँ आपको कि साहब वो सोकपीट बन नहीं पा रहे। और जहां तक बात इसकी है, घरों जनों पहुंच गया, मैं तो गाँव घूम के देखा मैंने, कितने घरों में पहुंचा पानी, कितने में नहीं पहुंचा, ये आप स्वयं एक सर्वे करा लीजिए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, राजीव गांधी ने एक बात कही थी, मैं उनका बड़ा दिल से हृदय धन्यवाद देता हूँ। उनका कोई भी स्कीम होती है वो यहाँ से जाती है तो नीचे तक पहुंच ही नहीं पाती। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी खिल्ली उड़ाई थी, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा खिल्ली उड़ाई थी कि जो रेवड़ियां बांटी जा रही है ये रेवड़ियां ना दी जाए, अगर आपके पास धन है, उसकी व्यवस्था है तो आप घोषणा करिए पब्लिक में, लेकिन दिग्भ्रमित मत करिए, उनको सपने मत दिखाइए। आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, महाराष्ट्र में लाडली 5 लाख, अभी 5 लाख बहनों को अलग किया गया है, 2,46,00,000 बहनों को चुनाव से पहले दिया गया, अब 2,41,00,000 बहने हैं। शिव भोजन थाली किसने घोषणा की थी? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन किसने घोषणा की थी? ये मैंने तो नहीं की थी, विपक्ष ने तो नहीं की थी, न उद्धव ठाकरे ने की थी, न शरद पवार जी ने की थी, ये घोषणा की थी महायुति के। और महायुति के मुख्यमंत्री कौन थे? जिनको ये नहीं मालूम था कि हम 2 महीने बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उन्होंने घोषणा की थी। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत दादा पवार थे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। जो लाडली बहनों को पैसा दिया गया वो कोई बजट से नहीं आया था, वो पैसा कहां से आया, कैसे दिया गया? 5 लाख बहनों क्यों आधा दिया गया? जो कुछ भी सर, लेट मी क्लैरिफाई, ये जो है ना, इट इज सो अनरिलेटेड फैक्ट जो ये बोल रहे हैं कि इनका कोई ये नहीं है ना, बजट से पैसा नहीं आया तो कहाँ से आएगा द्विवेदी जी? ये तो बजट का ही पैसा जहां से आया, मैं नहीं कहता, अरे बजट का पैसा है ना भाई साहब, सुन लीजिए ना, अरे बजट का पैसा रहेगा। सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ। अब आपने 21, सुन लीजिए, पहली बात पहले सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं आपकी बात जवाब दे दूंगा। 2100 रुपए देने आपको, आप 1500 रुपए क्यों दे रहे हैं? कि आपकी किसी वादे का कोई मतलब नहीं है। 3 वादे मैंने गिनाए, किसानों की वादे आपने किए थे, उनका वादा पूरा नहीं होना, 7 गारंटी आपने दी थी। अब आप लंबी चौड़ी यहाँ बयान कर रहे हैं, देश को भ्रमित कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो हमारे सोलर पैनल चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, दुनिया भरेगा आपने कहा दी।
लेकिन जो गारंटी आपने दी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन आपको कराना था, क्यों नहीं हो रहा है? शिव भोजन थाली महाराष्ट्र में क्यों चालू नहीं हुई? लाडली बहना को 21 रुपए क्यों नहीं दिए गए? ये जो चीजें हैं ये कौन देखेगा? घोषणाएं तो आपने की थी ना। जो प्रधानमंत्री पहले कहता था कि रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए, उन्हीं के संरक्षण में ये रेवड़ियां बांटी जा रही। मल्लिकार्जुन खड़गे का आप लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने तो सही बात कही थी। ये बात उन्होंने स्पष्ट कही थी कि अगर आपको भाई 2.5 सरकार आ मिलती, ये तो है नहीं कि महा विकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी, उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी, जिसमें आपको पता नहीं था कि कितना बजट है, कितना बजट नहीं है। आपको तो पूरा मालूम था कि श्री भोजन थाली जब चालू करेंगे इसमें इतना बजट आएगा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन कराएंगे इसमें इतना बजट आएगा, 2100 रुपए देंगे इसमें इतना बजट आएगा, किसानों के लिए जो देना था उसमें इतना बजट आएगा। आप तमाम घोषणाएं भी किए दे रहे, लेकिन जो मूल घोषणाएं की गई, जो मूल गारंटियां दी गई, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। Right. तो So, ये Dr. कौन सी Malhotra, हो रहा है? जी, okay. Bhakre साहब, we'll come back to you to answer all these questions. Dr. Malhotra, आप ये बताएं, do you see some hope for the law and order situation improving in Maharashtra? आपको उम्मीद है कि महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कानून व्यवस्था और बेहतर होगी? नंबर 1। नंबर 2, जो अभी हेल्थ की बात की गई, जैसे अभी भी बागड़े साहब ने कहा कि इतने स्क्वायर किलोमीटर्स में इतने हेल्थ सेंटर होंगे, 5 स्क्वायर किलोमीटर में एटलीस्ट एक हेल्थ सेंटर होगा जहां पर डॉक्टर उपलब्ध होगा, नर्स उपलब्ध होगी और फ्री मेडिसिन वगैरह मिलेंगी। डू यू सी दैट स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड, मैम? See, first of all, we hope that it gets implemented, but as we have seen, even Nirmala Sitharaman ji also, I think in the last budget had said that a lot of primary health centers would be there and all. So I don't know what has really happened after that, because the initially promises are there. I mean, okay, they definitely look good on the paper, but they should be implemented actually at the ground level. We don't see that happening. I mean, healthcare in Maharashtra is really deteriorated to a very bad extent. So, the whole overhauling of the whole thing really requires that it should be done very meticulously. If you have the budget, then have a proper task force, have a proper thing that it is going to happen. Then only something. Regarding the law and order situation, Devendra Fadnavis ji has promised number of times that okay, it will be safe, Maharashtra is safe, Maharashtra pragati hote, Maharashtra pude chal rahe, but we don't see that. We see only Maharashtra ki adhogati hot chal rahi hai. All the time something or the other problem is coming. We take respite from something is one incident happening, and just within 1 or 2 days the next very gruesome incident keeps on happening. महिला सुरक्षा, I mean, what is happening कि पहले भी हम हमारे स्पोक्स पर्सन जी ने उन्होंने बोला जो है कि केंद्रीय मंत्री उनकी भी लड़की को मतलब she faced a problem. So what I mean, आम जनता को क्या प्रॉब्लम, कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? डॉक्टर मल्होत्रा, जो आयुष्मान, यू आर कनेक्टेड टू द हेल्थ सेक्टर. अभी in this budget every 5 kilometers is कहा कि there will be a health care center for the people. Is Ayushman working? आयुष्मान का जो 5 लाख है, मोदी साहब कह रहे हैं कि आरोग्य मंदिर हमने इतने लाख खड़ा कर दिया है, और द स्मॉलेस्ट गरीब से गरीब आदमी कोई भी मंदिर में जाएंगे तो इंटरनेशनल क्लास का उनको ट्रीटमेंट मिलेगा. तो कितना सच्चाई है उसमें? इज इट रियली वर्किंग? इंटरनेशनल क्लास के उनको इंटरनेशनल क्लास की फैसिलिटीज तो पहले अवेलेबल होनी चाहिए जहां पे मतलब देंगे. अभी हम देख रहे हैं कि वो कहीं भी जाते हैं तो देयर इज हार्डली एनी फैसिलिटीज. आई मीन, फॉर छोटी टेस्ट के लिए उनको प्राइवेट में जाना पड़ता है. तो किस तरह से ये, मैंने बोला ना कि हेल्थ सेक्टर में इट इज अ वेरी मतलब बहुत ही उसमें प्रॉब्लम्स है. उसका पूरा, इफ यू हैव रियली द बजट, डू इट प्रॉपर्ली इन अ स्टेप वाइज मैनर. लेट द ग्राउंड रियलिटी बी देयर दैट द पीपल कैन यूटिलाइज सच फैसिलिटीज. द फैसिलिटीज हैव टू बी देयर. You know, Dr. Malhotra, I just want to know, because in Delhi, केजरीवाल जी कहता है कि गरीब आदमी एक हॉस्पिटल में जाता है, जो पब्लिक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, if the treatment is not available there, वहां से लिखित बाहर प्राइवेट में भी करेगा तो सरकार will take the खर्चा. ऐसे स्कीम क्या उपलब्ध है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में? Because that is what गरीब के जेब से खर्चा नहीं होना चाहिए. Nothing should be spent. Is that facility here? But the ground reality is that every time the patient is asked to go out,
he has to spend a lot, he has to wait for a long time. So all this then people prefer that okay kaise bhi karke kuch jugaad karke private mein hi jaye. Why to go? See, the facilities should be such that people want to go to this health sectors which should be utilized for the people. ये क्या हो रहा है कि उस खाली स्कीम्स जो है उसकी पब्लिसिटी इतनी होती है, उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना बजट स्पेंड होता है, वही बजट आप अच्छी चीजों के लिए यूज करेंगे, भले एडवर्टाइजमेंट कम करो मगर एक्चुअली लोगों को फैसिलिटीज दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट जाते जाते एक पॉइंट भी बताना चाह रही थी कि अभी इन्होंने बोला कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं, तो जॉब क्रिएशन इज आल्सो देयर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड एज वी हैव सीन दैट इन महाराष्ट्र द MSMEs are really suffering. These micro, medium and small scale industries are really suffering. तो जीएसटी की प्रॉब्लम है, काफी सारी प्रॉब्लम है, ऐसे लग रहा है कि इन सबको दबाया जा रहा है, एंड जो सम फ्यू कॉर्पोरेट्स के बेनिफिट के लिए ये सब चीजें हो रही है। तो ये उनके लिए भी क्या बजट यूटिलाइज होने वाला है? अब आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र को सक्षम बनाए, बट किस तरह से महाराष्ट्र सक्षम होगा? ये सब बाकरे साहब का क्लेम है डॉक्टर मल्होत्रा की एफडीआई में महाराष्ट्र नंबर 1 है पूरे देश में एफडीआई में नंबर 1 है। एमएसएमईज, मेक इन इंडिया इज अ मोदी पुश प्रोजेक्ट, जो फडणवीस साहब भी पुश कर रहे हैं। 6 करोड़ पूरे देश में एमएसएमईज रजिस्टर्ड हो गया है। 5 लाख का क्रेडिट कार्ड, वर्किंग कैपिटल के लिए क्रेडिट कार्ड इश्यू कर रहे हैं रजिस्टर्ड एमएसएमईज को। इंप्लीमेंट है क्या ग्राउंड में, या सिर्फ ये हवाई बातें हैं? That we have to see, ये होगा तो अच्छा है, at least they can do something, but ये this is how much, see ground reality, जो ग्राउंड के आंकड़े हैं वो पारदर्शक प्रकार आगे आने चाहिए, तो ही हमें कुछ बात समझ में आ गई। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि it is only the MOUs which are happening, actually whether the money is coming, all this has to be seen really. Right. No, I want to ask Bakir Sahab. Bakir Sahab, this is very interesting because Ayushman is Modi Sahab and Fadnavis Sahab का पेड प्रोजेक्ट है। 5 लाख आप एश्योर कर रहे हैं, बट इज द कॉमन मैन, जो गरीब से गरीब आदमी हॉस्पिटल में जाता है, अगर हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं है, जो डॉक्टर मल्होत्रा कह रही है, डॉक्टर मल्होत्रा मैडम सेइंग दैट उस गरीब आदमी का पैसा खर्चा होना नहीं चाहिए जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, बिकॉज नो फैसिलिटी इन द पब्लिक हॉस्पिटल। तो इज दैट बीइंग लुक्ड आफ्टर? बिकॉज दैट वाज बीइंग फॉलोड बाय केजरीवाल का जो मॉडल था मोहल्ला क्लिनिक है कि गरीब आदमी का जेब से एक पैसा नहीं जाएगा, अगर फैसिलिटी नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, दैट गवर्नमेंट विल पे। ऐसा कुछ स्कीम है क्या? नहीं तो फिर कागजी कार्रवाई होता है। बाकिर साहब, आयुष्मान भारत स्कीम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। जहाँ फैसिलिटी, डॉक्टर मल्होत्रा जी बोल रही है कि जहाँ फैसिलिटीज नहीं है, गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग न्यू एम्स, न्यू मेडिकल कॉलेजेस, न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। सो ये प्रोसेस तो ऑन है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हर जगह मेडिकल फैसिलिटी पहुंच चुकी है। दैट्स वाई इट इज अ कंटिन्यूइंग गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूइंग गवर्नेंस सिस्टम। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को, गरीब लोगों को, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे घर के एक जो व्यक्ति है, उनके वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर बीच में डिटेक्ट हुआ है। नागपुर में जो एक NCI करके ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा हॉस्पिटल कैंसर का बना है, उन्होंने आयुष्मान भारत में पूरा उनको उसमें कोई भी खर्चा नहीं लगा है। ये मैंने खुद अनुभव किया है। तो जो भी चीजें हैं, जहाँ पॉसिबल है, सरकार हर जगह कोशिश कर रही है। हमारे जो गार्डियन मिनिस्टर्स है वो स्पेशली हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, और हर जगह जो है मोदी जी का जो है कि गरीब आदमी को एक ईज ऑफ लिविंग देना चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ है, सबसे इम्पोर्टेंट है पेयजल है, सबसे इम्पोर्टेंट है घर है, सबसे इम्पोर्टेंट है उसका गैस है। तो दीज आर ऑल बेसिक नीड्स। हम लोग जो आज मतलब ये है कि हर गरीब को मिलना चाहिए, इसलिए ये पूरी सरकार गरीबों का ही तो कल्याण चाहती है। तो जहाँ कोशिश है वहाँ पूरी कर किए, और मैं ऐसा बोलूंगा कि जहाँ मतलब होने का है वहाँ जरूर होगा, क्योंकि एक प्रोसेस में हर जगह कर रहा है। अगर आप देखिए कि ईमानदारी से सरकार इंप्लीमेंट कर रही है, ईमानदारी से देयर आर एफर्ट्स आर। देवेंद्र फडणवीस जी इज अ 24/7 पॉलिटिशियन। आप रात को 3:30 बजे उनसे, मैं कई बार उनको रात को 3:30 बजे मिला हूँ। तो आज ही इज अ 24/7 पॉलिटिशियन हु वर्क्स फॉर द स्टेट। एंड मोदी जी का तो आपको पता है कितने सालों से वो अविरत उनका मेहनत चल रहा है। दूसरा, मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा कि ये जो द्विवेदी जी बार बार बोल रहे हैं लाड़की बहन, अरे भाई साहब, हमने तो लाड़की बहन इंप्लीमेंट करके दिखाया है। आपके जो कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री कल वो इंडिया टुडे के प्रोग्राम में बोल रहे थे कि मेरे को कुर्सी पे बैठने के बाद पता चला कि स्टेट के पास पैसा नहीं है, और मैंने तो ऐसे ही प्रॉमिस कर दी। कर्नाटक में कांग्रेस नहीं कर पा रही है, अरविंद केजरीवाल पंजाब में नहीं कर पा रहा है,
कांग्रेस हिमाचल में नहीं कर पाई। तो ये सब चीजें आपके सामने है और हम लोग मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली में भी कर रहे हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं। सी विकास, विरासत और फिस्कल डिसिप्लिन ये हम लोग करते हैं। आप देखिए कोविड के वक्त पूरे दुनिया बोल रही थी कि नहीं नहीं आप सब नोट छाप दीजिए, जनता को पैसा हाथ में दे दीजिए। आज जो जो देशों ने वो किया है उनका इन्फ्लेशन देखिए कहाँ जा रहा है, और भारत का इन्फ्लेशन अंडर 5 है। ये यूपीए के बाकी साहब दिस इज इंटरेस्टिंग। पहले जो आप रेवड़िया बोले, रेवड़िया 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 और रेवड़िया इनकॉर्पोरेट करके आप जीत रहे हो इलेक्शन। आज दिल्ली में आपने केजरीवाल से ज्यादा रेवड़िया बांटा है, जो पहले आप कह रहे थे रेवड़िया है। देखिए सर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टारगेटेड सोशल वेलफेयर एंड रेवड़ी। आज जो गरीब महिला को मिल रहा है वो कोई रेवड़ी नहीं बोल सकता। आज 1500 रुपए जो है आज उनको दिया जा रहा है, तब ये कांग्रेस और हमारे जो राष्ट्रवादी शरद पवार और हमारे द्विवेदी जी बोल रहे थे कि यार ये तो 1500 रुपए सस्टेनेबल नहीं है। उस वक्त ये प्रॉमिस कर रहे थे हम 3000 रुपए देंगे ना। इनके डबल स्टैंडर्ड देखिए। बीजेपी ने आज तक जो जो प्रॉमिस किए वो हर प्रॉमिस पूरा किया है। हमको पहले बोलते थे राम मंदिर करेंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, राम मंदिर हो गया, आज इतना बड़ा कुंभ मेला हो गया। अरे राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट में बनवाया। अरे भाई साहब फिर तो आप इलेक्शन के पहले ही हो गया। देखिए ना in a very hurried manner. राम मंदिर बनवाया सुप्रीम कोर्ट ने। आप क्यों अपने आप दोनों के बीच में भाई? नहीं बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया राम मंदिर। राम मंदिर में मत लीजिए। हमारे टेन्योर में हुआ, इतना शानदार राम मंदिर बना है। टेनर में तो काला गुना था, कांग्रेस टेनर में। कांग्रेस टेनर में काला गुना था। कांग्रेस टेनर में अभी ढांचा गिराया गया था। कांग्रेस के टेनर में कांग्रेस के टेनर में ढांचा गिरा था। भटक गई है, कांग्रेस उन्हीं का भी कहा रिजेक्ट कर रही है। आप उसे धार्मिक चाहिए, धार्मिक धार्मिक बस धार्मिक हिंदुत्व पे वापस समीर आइए, भागे साहब, अच्छा वोट मिलेगा। समीर भागे साहब एक छोटी सी चीज, आप गलत जेंटलमैन आप गलत अरे द्विवेदी जी एक मिनट सर, एक मिनट मैं, अरे बागरे साहब एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात। आपने जो आयुष्मान स्कीम की जो बात करी, जो प्रदीप जी ने बोला, प्रदीप जी शायद एक चीज बताना भूल गए सर। मुंबई शहर में, एंड आई थिंक डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा विल बेयर मी आउट, मुंबई शहर में बहुत ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो आयुष्मान कार्ड को मानते नहीं है सर। वो बोलते हैं पहले भैया पैसे यहाँ पे डालो, उसके बाद बात करेंगे। आई एम नॉट जोकिंग, इट इज अ सिस्टेमिक एरर विच हैज टू बी करेक्टेड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आयुष्मान स्कीम गलत है, बिल्कुल बहुत अच्छी स्कीम है। Sir, I don't say making सर sweeping पूरी बात comments तो on सुन रहे either हैं side is not correct. सर, पूरी Making बात sweeping सर statement- पूरी बात तो सुन रहे हैं। मेरा ये कहना है, you will have to have, as Dr. Malhotra said, कि you will have to have a proper committee monitoring कि जो आयुष्मान में जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्या वो मुंबई का, नासिक का, नागपुर का, पुणे का और बाकी जितने भी शहर हैं, हर शहर में, रत्नागिरी में, क्या जितने भी हॉस्पिटल्स हैं क्या वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं और क्या नहीं। देयर हैज टू बी अ प्रॉपर वेबसाइट, there has to be proper feedback and action taken on that feedback, sir, because even now where we sit there are at least 3 hospitals close by which refuse to acknowledge the Ayushman card. अब आप बोलें बागरे साहब, प्लीज बताएं। Sir, I will say that sweeping comments on either side is not correct. There may be instances which you are pointing out. I am not denying that. There may Yes. be instances. Yes. But wherever complaints are being received by the government, or Modi government has a dashboard for every scheme. If you go to the My Schemes and other dashboards, आपको आज के डेट में कंटिन्यूस में पता चलेगा कि मुद्रा लोन्स कितने, आयुष्मान के कितने बेनिफिशियरी। सर, wherever there are complaints, those are being addressed. डॉक्टर मल्होत्रा जी बोल रही है कि कमिटी, देयर इज ऑलवेज already a system which is monitoring the entire thing, because I have interacted with lot of people in government in Maharashtra as well as central government. जी। The committee is committee मतलब there is a system which is being monitored on, not only on the health aspect, every aspect. Today you must have seen कि देवेंद्र जी ने जो डैशबोर्ड बनाया, उनके मोबाइल पे पूरा डैशबोर्ड, आज ही का दोपहर का न्यूज आप देख लीजिए कि the CM is so hands on that he will get every scheme detail on the dashboard. वैसे PM साहब के यहाँ सर इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा PMO है, और every department is being monitored, and there is a performance audit also which is going on. It's a ongoing process. So I am not saying that आयुष्मान भारत में कुछ हॉस्पिटल्स ने डिनाई नहीं किया होगा, बट इफ समथिंग कम्स टू आवर नोटिस वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. Sir, you'll have to take very strict action. That's all I'm saying. You can bring it to my notice. I will, sir. So that I We will send it to you. We will send it to you, to sir. the respective authorities. Now, but the hospitals say कि यार वो पैसे नहीं आते। प्रॉब्लम ये है कि 6-6 महीने हमको पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए we are not doing it. That's what they say.
So there may be a systemic error somewhere. That's all I'm saying. द्विवेदी जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए द्विवेदी जी। अभी इन्होंने कहा था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम 5 किलोमीटर बना रहे हैं। जी जी। तो कांग्रेस ने पहले शुरू कर दिया सर। जिस कांग्रेस को गाली देते हैं, जिस कांग्रेस की भाषाएं समझ में नहीं है, हाँ उनके विधायक जो एमपी समझ में आते हैं, उनको तोड़ना समझ में आता है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो रचना है वो तो बहुत पहले हो चुकी है। आप देखिए आपके गांव-गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आप हर जगह देख लीजिए आप। इवन उसमें डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, बाकायदा उसमें फैसिलिटीज है। तो ये तो ऑलरेडी पहले से चल रहा है। अपने महाराष्ट्र में आपको 11 साल बाद ध्यान आ रहा है, 2.5 साल की आपकी गवर्नमेंट रह चुकी, तब आपको ध्यान नहीं आया, अब आपको ध्यान आ रहा था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ध्यान नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ, जिस कांग्रेस को आप गाली देते हैं, जिस कांग्रेस ने सुई से लेके एरोप्लेन बनवा दिए, जिसने रेलवे लाइनें बनवा दी, उगा टाके नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा हो गए आजकल। नहीं मैं कांग्रेस प्रवक्ता नहीं है, लेकिन सच्चाई करता हूँ। मैं शिवसैनिक हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे का भक्त हूँ। वीर सावरकर को और बाला साहब ठाकरे को आपने भारत बैंक अकाउंट नहीं खोले थे सर। वीर सावरकर, डॉक्टर मल्होत्रा जी सावरकर सुन लीजिए, आप देखिए कि थोड़ा धैर्य रखिए मानवर, बेसिक बैंक थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा समीर जी थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, हड़बड़ाइए ना, थोड़ा धैर्य रखिए। वीर सावरकर का नाम लेंगे, बाला साहब ठाकरे का नाम लेंगे, अभी तक भारत रत्न नहीं दे पाए। अभी औरंगजेब है, औरंगजेब का कबर को हटाना अभी तक नहीं दे पाए। औरंगजेब को कबर को हटाना है। बकरे साहब देवेंद्र फडणवीस जी ने वो नया कुछ बोले हैं कि ही इज फॉर रिमूवल ऑफ द टूम। अरे सर वो तो संरक्षित है, एएसआई के माध्यम से हटाना नहीं हटाना केंद्र सरकार के ऊपर है। केंद्र सरकार से पूछिए भाई, संरक्षित का मतलब होता है कुछ पैसे दिए जाते हैं, आपको हटाना नहीं हटाना, उसके लिए हमें बात करने की जरूरत थोड़ी ना है। जैसे भारत में देना वीर सावरकर को, किसानों को कोई लाभ देना है, हिंदू भारत और ठाकरे भारत में देना है, इसे पूछना किससे? राइट, थैंक यू सो मच जेंटलमैन एंड मैम। औरंगजेब की खबर हटानी है तो आप हटा दीजिए, उसमें हमें कौन दिक्कत है? वी वेर अ लवली डिस्कशन। दिया कुमारी सर मुझे प्रॉब्लम है, जयसिंह है सर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। जयसिंह जो थे वो उन्होंने क्या किया शिवाजी? सर मुझे व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, कोई भी हिस्टोरिकल साइट को छेड़ना नहीं चाहिए, मुझको व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। मैं ये मान करके चलता हूँ कि हर चीज के बारे में सच बोलिए। हीरो और उसके बारे में सब जगह it was glorified. सर 10 सेकंड मुझे और दे दिए, 10 सेकंड। So basically glorification of wrong heroes. Sir, औरंगजेब को बनाया था सर इन्होंने। अरे समीर बागड़े साहब, हमें सच बोलना चाहिए हर जगह पर। सर द ट्रूथ हैज अ वेरी एनेस्थेटाइजिंग क्वालिटी। द ट्रूथ इज समथिंग व्हिच प्योरिफाइज। क्या है कि सच में बहुत बड़ी पावर होती है सर। अभी जाकर के one more thing, truth has a way of coming out. Yes, always, always, I agree with you. क्योंकि सर 60 साल तक अगर आप किसी चीज को छुपाने की कोशिश करेंगे तो एक्सप्लोजन तो होगा ही ना सर, होगा ही। वो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। व्हाट डू यू डू? जैसे लाइक फॉर एग्जांपल बाला साहब ठाकरे जब वो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात किया करते थे, हर जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज वगैरह वगैरह, बहुत लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग जो थे बाला साहब का मजाक उड़ाया करते थे। आज वही लोग जो सिर्फ और सिर्फ शाहू फूले अंबेडकर की बात करते थे, आज उनको भी जबरन छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की बात करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और द्विवेदी साहब, एकनाथ शिंदे जी ने कुछ कहा कि बाला साहब ठाकरे जी के जो दिल से चाहता आर्टिकल 370 और राम मंदिर, वो दोनों आ गए सर, दोनों आ गए, दोनों बन गए। सर इनके सांसद तो वक्फ एक्ट को अपोज कर रहे हैं सर, इनके सांसद वक्फ एक्ट को अपोज कर रहे हैं। 10 सेकंड दीजिए। वक्फ कानून को शिवसेना जयसिंह राजा थे सर, वो औरंगजेब भी क्या थे सर? कमांडर इन चीफ। उन्हीं की वंशज हैं। तो उनकी गलती है क्या सर? ये कैसे बोल सकते हैं सर? द्विवेदी साहब ये कोई आर्गुमेंट नहीं हुई। आज मेरे परदादा, मैं फैक्ट बता रहा हूं, मेरे परदादा सरदार बहादुर दिलावर सिंह जी, पूरा नाम अगर मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बाद में उनको सरदार बहादुर की उपलब्धि दे दी गई। सर वो डकैत हुआ करते थे, ही वाज अ डाकू। सर मैं दूसरी बात मतलब मैं भी डाकू हूं क्या? क्या बोल रहे हैं सर? वाल्मीकि जी डाकू थे, बाद में हो गए थे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन पे माल्यार्पण हो रहा है
और औरंगजेब को आप गाली दे रहे हैं। जी अब मेरी बात समझिए, औरंगजेब देखिए, क्या- मैं दो औरंगजेब- सर औरंगजेब की तारीफ करेंगे क्या? आज अरे भाई, छत्रपति मेरी क्या बोल रहे हो शिवाजी सर? महाराज को तो इतना जय सिंह यातना को देके भी- मारा था, तो आप थोड़ी अरे, बहुत मेरी तारीफ बात कर सुन सकते हैं। लीजिए, अरे बात उनका मेरी कोई सुन भी लीजिए, सिपा सलार रहे, बागरे जी सुन लीजिए, washed सिपा his sins. सलाहकार द्विवेदी जी तो क्या बोल रहे हैं आप? tyrant तो उनकी मानपन who हमसे होना committed चाहिए lot क्या? of sins. मैं एक बात पूछ और रहा वो सर हूँ, हमारी हिंदुस्तान का 9वीं कोई पातशाही का हीरो सर नहीं हो काट सकता। दिया। मैं कहता हूँ क्या उनका मानपन होना चाहिए? उनके लिए कोई मानपन करना चाहिए? आप उप मुख्यमंत्री को मानपन करना द्विवेदी जी, चाहिए? आप मैं इतनी इतना पूछ कंफ्यूज रहा हूँ। आइडियोलॉजी में मत रहिए। आप एक तो हिंदुत्व के तरफ आइए या दूसरी तरफ अरे मैं जाइए। हिंदू तरफ हूँ, आप ज्यादा, आप बीच आप ज्यादा, में मैं अधर हिंदू में तरफ लटके का। हुए हैं आपका- और आपको अभी आपका आपकी पार्टी दिखावे बचाना का- मुश्किल हो रहा है। सर हिंदुत्व द्विवेदी वादी जी आपका बाला हिंदू साहब का आप माननीय समझ बाला नहीं साहब रहे की हैं। पार्टी हिंदुत्ववादी थी और अरे हम लोग हिंदुत्ववादी बाला में साहब के आप ज्यादा विचारों का आदर हिंदुत्ववादी हो। करते हैं। और उद्धव ठाकरे जी आज उन्होंने तो आप भारत रत्न अपना क्यों नहीं भाषण दिया भी अभी ये तक? शुरू करते थे कि अभी तक भारत रत्न तमाम क्यों नहीं हिंदू दिया? भगिनी बावन्नो, अब इन्होंने भारत हिंदू रत्न शब्द क्यों हटा नहीं दिया। दिया अभी तक आपने? उनके भाषण में आज मैं हिंदू पूछ रहा हूँ शब्द ना हटा आपसे। दिया। अरे भाई साहब, भारत उनका रत्न क्यों भाषण नहीं तो दिया? सुनिए पहले। 10 भारत साल रत्न पहले क्यों का नहीं दिया भाषण सुनिए आपने? उद्धव ठाकरे। 10 साल भारत पहले का रत्न क्यों भाषण नहीं सुनिए। दिया आपने? अरे आप कांग्रेस के भारत क्यों रत्न गोदी में क्यों नहीं जाके दिया बैठे आपने? हैं? आप जी। क्यों बैठे हैं भारत कांग्रेस रत्न के क्यों नहीं गोदी दिया? में? राइट, थैंक यू सो आपने भारत मच। रत्न क्यों नहीं दिया? आप मुझे द्विवेदी बताइए जी, ना। द्विवेदी जी अभी बहुत तक जल्दी भारत हो रत्न क्यों जाएगा। नहीं दे पाए? देखिए सर, वो भी बहुत द्विवेदी जल्दी हो जी, जाएगा। अपेक्षा है, अभी भारत पूरी रत्न क्यों नहीं दे करेंगे। पाए? द्विवेदी जी अगर आप इतनी ज्यादा बार बोलेंगे, द्विवेदी जी अगर आप इतनी ज्यादा बार बोलेंगे तो अगले साल ही हो जाएगा। भारत रत्न क्यों नहीं दिया आपने? मुझे अरे बताइए, द्विवेदी क्यों जी नहीं दिया? इतना मत बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को आइडिया क्यों दे रहे हैं? वो कर देंगे सर, फिर उसके बाद आप क्या सवाल दे दें। पूछेंगे? हम तो क्या बोल रहे हैं सर आप? नहीं दे दे, हमने ज्ञापन दिया सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। कांग्रेस के राहुल गांधी जी ओपनली सावरकर जी को गाली देते हैं, तब द्विवेदी जी चुप रहते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है इनके हिंदुत्व पर। चलिए सर, थैंक यू सो मच। अरे डॉक्टर मेरे सुनैना हिंदुत्व मल्होत्रा, राष्ट्र वेरी की हैप्पी हिंदुत्व होली टू राष्ट्र यू। की रहिए। सर हमारे सर हिंदुत्व सर की खिदमत रहिए। द्विवेदी जी आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभकामनाएं। और सभी भागरे जी आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं होलिका दहन के साथ महाराष्ट्र के ऊपर जो भी काले बादल हैं वो सब जल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। Thank you so much. एडवांस में शुभकामनाएं। Thank you. थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। Well, Samir Bagreji has fantastic knowledge about the budget. He was actually very, able to very come out with real facts and figures, especially with regard to everything else. But I'll tell you very frankly, the river linking project, it is fraught with lots and lots of dangers. Because every river has its own ecosystem. When you are linking it up with something else, you are mixing up ecosystems, and that can create an environmental disaster in years to come. Now, what can you do with there's no water at all. So With what the you can drought. do is you can create reservoirs. There are lots and lots. Pradeep ji, over here, what has happened is, and here is something which I keep arguing, and I've been arguing about this now for a long, long time. There are traditional ways of water conservation. There are traditional ways of reactivating river aquifers which are there in the underground systems, which we don't want to go into No, but because he's already working on that. I mean, But he's not, sir. Alag schemes. जो Pradeep उन्होंने ji. लाया है, his own irrigation projects includes that Pradeep making ji. small lakes everywhere. प्रदीप जी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। And that was stopped by the UBD government. जैसे अभी एकनाथ शिंदे जी ने अभी बात करी, आप ही ने बताया था मुझको ये, that there will be over 100 lakes now in Mumbai, कि Mumbai will soon be a city of lakes, ऐसा एकनाथ शिंदे साहब ने कहा. That is the solution. The problem is when you go in for these grandiose, magnificent irrigation projects, what happens is everybody makes a lot of money. The traditional ways of preserving and conserving water is something which works in the long term but does not make money for politicians or for contractors. Now, very unfortunately, we are living in a system where you require money on a daily basis which is gargantuan in amount. The amounts are gargantuan, they're huge. Jal Shivir. Where do they come from? The Jal Shivir project that he had, having small irrigation everywhere, small. I hope they implement that. And that was stopped. That was stopped, but it's regained now. Which is very stupid. I hope to God that they actually start that. जो जल शिविर का जो प्रोजेक्ट था, हर जगह पे let every village to be electrified by a small little run of the river dam and a turbine, and which will cater only to those 10 villages. That's it. That's the way forward. Instead of having these huge dams, these huge multi-purpose projects and these irrigation schemes where, as Ajit Dada Pawar had said way back in 2014, that what do you want me to do? Do you want me to piss in the canals? That's what he said.
Now, But the Jal point Jeevan is- mission of the center and fused with Fadnavis's mission Jal Yukt Shivir and all. I mean, they're working in a big way. Where providing fresh water, potable water, drinking water to the rural households. अभी ठीक है, अभी सब लोग हंस रहे हैं कि अभी तक पाइप डाले पानी नहीं है, but I mean प्रोसेस तो शुरू कर दी है. I hope it succeeds. That's the only thing that I can hope for. But the way they're going about it, I'm not really sure how successful they will be. It is just like the Namami Gange scheme or the scheme to clean up the Mithi River right here, which we can see from our window. So I for hope- that you require dedicated leadership in every small single segment. Right. Well, that's just about it for tonight's show. लेकिन चलते चलते आपको ये बता दें कि अभी भी वो हाईजैकिंग ड्रामा जो है बोलान पास में बलूचिस्तान में क्वेटा और पेशावर के बीच में जो ट्रेन है, अभी भी द बलूचिस्तान Liberation Army still has that train, notwithstanding an all-out attack which has been launched by the Pakistani army. अभी भी 100 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनके कब्जे में हैं और उन्होंने ये कहा they'll start killing them. I hope they don't. I hope this gets resolved as soon as possible because an act of terrorism anywhere is an act of terrorism, whichever part of the world it may be in. The promoters of terrorism are ultimately getting a taste of the old medicine. Because, yeah, as Hillary Clinton said, that if you raise snakes in your backyard, there is no guarantee they won't bite you. And the other thing is they were funding the snakes. That's right. They were funding the snakes and the hibernation and whatever you call it. That's what they were doing. Hibernation and growth. Everything That's was what the facilitated. Americans have always done. And then At you the blame end them of the that you're growing, day, and then you tell them that you're growing snakes in your backyard. That's right. And you funded the entire project. and you are funding their feed Yes. all the time. Well, the BLA, this is the most spectacular action yet. But that's just about it in tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही. And the Prime Minister, of course, is in Mauritius, right? प्रधानमंत्री Yes, is Mauritius he's में. a 2-day visit there. Wonderful, and he's brought Ganga Jal with him for the Mauritian Prime Minister, which is wonderful. Or has the controversy with regard to Raj Thakre refusing to have Ganga Jal been resolved? I'm not sure. It's there. still around. It'll continue till his Milawa. His Milawa is there end of the month. Ji, It'll so continue till then. Till then, he will come up with the I'm sure he'll come out with something else. yes. And I hope this Holi will herald a new era of prosperity, happiness and contentment for the entire state of Maharashtra and for all of India. I think it's already started with the Indian cricket team winning the Champions Trophy. और यहाँ पर खबर ये आई है, बहुत अच्छी खबर है प्रदीप जी, इसके पहले कि हम लोग आप सब लोगों से विदा लें, कि रोहित शर्मा और विराट कोहली साहब ने ये कहा है कि जो हमारा प्राइज बनी है चैंपियंस ट्रॉफी में जो आप हमें देने वाले हैं, वो आप अंडर 19 टीम के ऊपर आप जरा खर्च दें. I think that's amazing. My respect for I these remember guys. one of really the goes up. economists said, the height of capitalism is socialism. Yes. When you achieve that zenith, and then what happens, you tend to believe the socialist ideology, chalo hum thoda baat lete hain. And it's good for the country. Very good for the country, and my respect for both these chaps really and truly goes up, both for Virat Kohli and for Rohit Sharma. That's it, that's all. And I hope we'll have a ticker tape parade for the team, the way we did when they won the T20 World Cup. I think the whole of Mumbai is waiting for it, and Devendra Fadnavis ji has already announced that he wants it. He wants I hope it happens. He wants to do it. His indication is clear that he wants them there. That'll be wonderful, and they deserve it. I think we have won 2 ICC trophies within 10 months of each other. 10 महीने के अंदर सर T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है. मतलब I think we are going the way of the old unbeatable, invincible Australian team. I think. Exactly. I hope this winning streak continues. But that's it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही आज के लिए, और आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को. The Irish Rock, the Strikes 13. जी, घंटी भी बज गई है, जरा जोर से बजाएं भाई घंटी. Cast a shadow. सबको सुननी चाहिए. गुड, जबरदस्त, फैंटास्टिक. बस that's just about it. आप सबको नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. जय हिंद.